Good morning everyone. It is my immense pleasure to welcome you to the Career Advancement Program on Mastering Quantitative Aptitude for Competitive Success. Before we move forward, let me give you a brief introduction of Geeta Ratan International Business School. Geeta Ratan International Business School was established in the year 2004. It is a self-financing ISO 19001, 2008, 14001, 2015 and 50,001 2018 certified. An NAAC accredited institution. It is affiliated to Guru Gobind Singh Indovesta University, Delhi, and approved by All India Council of Technical Courses, AICTE, Ministry of Education, Government of India for Technical Courses, and Bar Council of India for Law Courses. The institute conducts various courses, namely MBA International Business, MBA Integrated, BBA Honours, both first and second year, LLM, Integrated BBA LLB Honours, Integrated BA LLB Honours. GIPS has been rated A+ by State Fee Regulatory Committee, a fee committee of Government of NCT of Delhi. GIPS has been graded A by National Assessment and Accreditation Council, third cycle. GIPS has been rated highest grade A by Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and GTS-IT University since 2013 to till date. GIPS has been rated A by Academic Audit Cell of GTS-IT University since 2011 till date. Today we have with us Mr. Anish Shur to enlighten the students on this topic. Anish Shur is an IIM Lucknow alumnus who has been teaching maths and quantitative aptitude to MBA aspirants for over a decade. He is also mentors the students who hopeful for group discussions and personal interview rounds that follow the competitive examination. He has appeared for CAT 7 times since 2016 and scored in a 99.9 percentile. Sood has 16 years of work experience as a management consultant, strategy consultant and research associate. Sir, it is our privilege to have you with us. I request Ms. Geeta Khani ma'am to give a green welcome to sir. Sir, the stage is all yours now. You can begin your discussion. Before we begin, yes students, whatever you are doing, please put it on hold. Ma'am would later give you ample time to complete it. Okay? So we are starting with the session and you have got lots of things to learn from him. He will provide you guidance regarding your future career also. So please make use of this session. Right. Good morning everyone. नाश्ता नुश्ता नहीं खाया? चाय कॉफी? Something stronger? Good morning everyone. Right जी. I know कि बहुत सारा काम है पीछे जनता अभी for the time being. Let's leave that work for now. As I like to say in my class, do one thing but do it right. For now, for the next, let's say 1.5 hours that we are focusing on, let's focus on the screen. Let's focus on what we are here to learn, and then you can get back to whatever you are doing. जो भी assignment है, test है, जो भी है, उसके बाद करते हैं हम लोग. I'll give you a bit of background about myself. वैसे मैम ने बता दिया है आपको. I have around 19 odd years of experience. Part of it is in corporate, part of it is in education. For the last over a decade, I have been taking sessions for UG, which is undergraduate and postgraduate students, predominantly for management entrance exams, but also for, if you are aware of it, SAT, ACT, GMAT, and so on. During the later stages of the admission process, I also take care of students who are preparing for interviews and group discussion. So in fact, that will be part of what we will do today.
Today's class will be about three major areas whenever we are talking about a corporate setup. In our corporate setup, you are evaluated on three parameters. So हम एक एक करके वो तीनों parameters देखेंगे कि वो तीनों parameters क्या हैं and how we can improve on that. First part, अभी आप लोग क्लासरूम में हो, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसका वर्क एक्सपीरियंस है? कितने MBA वाले हैं यहाँ पे? कोई MBA का स्टूडेंट है? Right, so you are all UG students. UG students में have you done any kind of internship? किसी ने कोई internship किया तो raise your hand please. Okay, school time पे या college time पे there are chances for you to get an internship. That will be your first stint in a full-on corporate setup. Before you get into a job, पहला setup होगा हमारा जब हम internship करेंगे. In case of internship, we get an idea of what the actual roles and responsibilities might look like. अब जब हम क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम में एटमॉस्फेयर अलग होता है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है. और जब हम क्लासरूम के बाहर होंगे, जब हम ऑफिस में होंगे, हम कहीं पे मीटिंग में हैं, तो वो स्ट्रक्चर हमें खुद प्रोवाइड करना है. These are some of the differences. These are some of the differences that we have when we move on from classroom to boardroom. अब जब हम मूव करते हैं, अगर आप अपनी जॉब के बारे में सोचते हो, does any one of you have any idea, any thought, कोई सोचा है आपने कि किस टाइप का प्रोफाइल आप चाहते हो? Any kind of area which interests you, marketing, finance, operations, FMCG, automotive, कुछ भी इस टाइप से एरिया है that you want to get a job in or you want to specialize in, या अपना बिजनेस शुरू करना है. Anyone has any idea? Please raise your hand. See, I don't want this to be a monologue. मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलता रहूं और आप सुनते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है आपको. What I would want is you to participate in the session. I would want you to interact with the session. Give me your inputs. We can discuss out. जहाँ पे भी आपके input हैं, wherever you want a support, wherever you have a query, we can discuss it out. Once you decide, once you get into job, या once you get an opportunity for an internship or a job interview, there are three major areas where you are evaluated. Your stage one is the area जहाँ पे आपका existing profile check किया जाएगा. आपने अभी तक क्या किया है, क्या background है, that will be evaluated. Your stage two will be your aptitude test. Aptitude test में आपने अभी तक जो पढ़ा है वो written assessment किया जाएगा. And your stage 3 will be a written assessment test जो कि generally ऐसे होता है या personal interview या discussion. Right. So as I was saying, आपके 3 stages हैं, stage 1, stage 2, stage 3. आपको सबको individually इन तीनों stages पे evaluate किया जाएगा. You will be evaluated on what your past background has been like. क्या किया है तुमने अभी तक? You will be evaluated on तुम्हारा aptitude test क्या है? Your aptitude test then includes includes quantitative aptitude, verbal ability, data interpretation, logical reasoning. ये सारे काम हैं हमारे, इसमें evaluate किया जाएगा आपको. And the third part is your personal interview. Personally one-on-one discussion किया जाएगा आपके साथ कि आपने अगर ये कोर्स चूज करा है या ये जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हॉबीज क्या है, स्ट्रेंथ एरिया क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सब कुछ वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट प्रोफाइल. व्हाट मेक्स अ ग्रेट प्रोफाइल? हाउ डज अ कैंडिडेट चूज यू? हाउ डज अ HR सिलेक्ट यू? डू यू नो कि जब तुम्हारा रेज्यूमे, अच्छा चलो लेट्स टॉक अबाउट रेज्यूमे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ रेज्यूमे बिल्ड? कितने लोगों ने रेज्यूमे बना रखा है? 1 2 3 4, बस 4 लोगों ने रेज्यूमे बना रखा है. ओके, 5 6. तो आई थिंक वन ऑफ द डेज वी शुड हैव अ सेशन कि रेज्यूमे कैसे बनाना है. सबसे पहला काम तो हमारा वो है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, उसमें क्या डालना है. लेट्स गो विद द असम्पशन कि तुमने रेज्यूमे बना रखा है. जब तुमने रेज्यूमे बना रखा है,
तो उसमें तुमने बहुत सारी डिटेल्स डाल रखी है अपने बारे में, लाइक व्हाट ऑल हैव यू इंक्लूडेड इन योर रेज्यूमे? स्टडी वगैरह, डिग्री और कॉलेज, एकेडमिक स्किल्स और क्या करियर ऑब्जेक्टिव डाला है? मैंने बनाई नहीं है। मैं अच्छा, अगर डालेगा तो क्या डालेगा? सर मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, राइट? तो तो व्हाट देव वाज सेइंग कि हम करियर ऑब्जेक्टिव डालते हैं अपने रेज्यूमे में। हिज करियर ऑब्जेक्टिव इज दैट ही इज इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर अ मार्केटिंग काइंड ऑफ प्रोफाइल। तो अगर देव से क्वेश्चन पूछा जाएगा इन एन इंटरव्यू, तो देव से पूछा जाएगा मार्केटिंग के ऊपर, क्यों करना चाहते हो मार्केटिंग, क्या पता है तुम्हें मार्केटिंग के बारे में। बट लेट्स कम बैक टू प्रोफाइल। प्रोफाइल में तुम्हारे रेज्यूमे में जो चीजें आएंगी, which will include obviously your academics, then include your internships, अगर कोई इंटर्नशिप की है, अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई लाइव प्रोजेक्ट किया है, कोई फैकल्टी के साथ प्रोजेक्ट किया है, किस इवेंट में तुमने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो डांसिंग इवेंट हो, चाहे वो कोरियोग्राफी हो, कुछ भी हो, that is what all you will put in your resume and eventually इसी के बेसिस पे तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो what happens is, जब तुम्हारा रेज्यूमे किसी एचआर के पास जाता है, कैन यू गेस एक एचआर कितना टाइम स्पेंड करता है तुम्हारे रेज्यूमे पे? Lesser, around 5 to 10 seconds. That's all the time they spend on your resume. उतने में उनके पास कुछ पॉइंटर्स हैं कि ये एकेडमिक इतने से ऊपर होना चाहिए, ये पर्सनैलिटी प्रोफाइल होना चाहिए, ये इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए, ये इंटर्नशिप होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, राइट? आई कैन गारंटी मैम टाइम दे देंगे आपको। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, दिस इज समथिंग दैट वुड प्रूव यूजफुल टू यू सूनर और लेटर। कितने लोगों के पास लिंक्डइन है, लिंक्डइन एक्टिव है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना रखा है, राइट? तो अगर आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया ना, अगर आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना रखा है, देखना लिंक्डइन में एक जॉब का ऑप्शन आता है, क्लिक ओवर देयर, लुक एट एनी वैकेंसी। जो फ्रेश वैकेंसी होगी ना, विद इन 1 डे भी होगा, उसमें ऑन एन एवरेज 500 से 1000 बंदा अप्लाई कर चुका है, which means एक एचआर के पास उतने रेज्यूमे चले गए हैं विद इन 1 डे। नाउ, और ये नंबर बढ़ता रहेगा। अगर एक एचआर के पास इतने रेज्यूमे ऑलरेडी चले गए हैं, तो they have to go through that resume. If they have to go through that resume, they can't go through that resume in each and every resume in detail. तो वो कुछ पैरामीटर्स ऑब्जर्व करेंगे। ये पैरामीटर्स हमारे प्राइमरी प्रोफाइल इवैल्यूएशन है। तुमने क्या किया है, क्या स्किल्स हैं तुम्हारी, वो मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। These are your profile criteria, जिस पर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम में से कितने लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है? कोरियोग्राफी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ भी है। How many of you have participated in any form of extracurricular activity? किस टाइप, क्या? Sports. Define sports. कैसे? In college, you are head of basketball. I want you to just try. Let me see who gives me the answer fastest. Yeah, later on, correct answer the fastest. Find the average of square of all single digit integers. मैं strongly suggest करूँगा कैलकुलेटर ना यूज किया जाए। अगर आप कर रहे हैं काम, खुद से करेंगे। Find the average of squares of all single digit integers. By 19, which comes out as 570 divided by 19, which comes out as 30. It's written incorrectly as 10. It's actually 570 divided by 19, which is 30. Let's take another example. Let's take another example here. दो चंक्स हैं,
पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, 2:3 है। दूसरे में मिल्क वाटर का रेशियो 5:7 है। पहले की क्वांटिटी लूं, दूसरे की क्वांटिटी लूं, इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो कितना होगा ताकि जो मिक्सचर बने उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 हो। Has any one of you prepared for quantitative aptitude before? कितने लोगों ने CVT के लिए पढ़ा है? ओके, CVT के लिए, हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट किया होगा ना आपने, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है ये। क्या करते हैं यहाँ पे? What do you do? What's the next step? बोल दे। अच्छा, याद नहीं है, fair enough, no worries। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने बैठोगे कुछ आंसर आ जाएगा पर वो यूजलेस है। Let's say something, बोल दे अगर कुछ बोल रही है। See, that's the biggest problem is QA। जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं जनता को लगता है हम बोलेंगे गलत हो जाएगा, and that's okay, होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है। Our aim is to try, हम ट्राई करेंगे, अभी गलत होगा पर हम ट्राई करेंगे तो कभी ना कभी सही भी हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉजिकली देखते हैं, हम सॉल्व नहीं करेंगे इस काम को। पहले मिक्सचर में मिल्क 40% है क्योंकि 2:3 है हमारा। अगर यहाँ पे देखते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। दूसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:7 है। पहले वाले में मिल्क 40% बनेगा, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, दूसरे में मिल्क 41.67% बनेगा। और मेरे मिक्सचर में मिल्क 60% है। तो में से किसी ने कभी दूध वाले से दूध लिया है? थैली वाला दूध नहीं, थैली वाला दूध नहीं, पतीले में जो लेते हैं। किसने लिया दूध वाले से दूध? कितनी बारी तुमने कभी मम्मी को बोलते सुना है कि भैया आज दूध पतला लग रहा है? हुआ है कभी? दूध वाले क्या करते हैं? दूध में पानी डाल देते हैं। अब मुझे बताओ, ये तो दूध वालों की ड्रीम सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि पहले वाले में दूध 40% है, दूसरे वाले में दूध 41% है और मिक्सचर में 60% बच जाए। तो पहले में भी पानी ज्यादा दूध कम, दूसरे में भी पानी ज्यादा दूध कम, मिक्सचर में मैजिकली दूध बढ़ गया। अगर मिक्सचर में मैजिकली दूध बढ़ गया तो दूध वाले यही ना करने लग पड़े हर बारी। Which means this is not possible। तुम कुछ भी कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर आने ही नहीं वाला है क्योंकि मैजिकली दूध तो नहीं बन सकता है हमारा। अभी बहुत छोटे छोटे वेराइटीज हैं हमारी। जब तुम इवैल्यूएट करते हो खुद को एग्जाम्स में करते हो, जैसे ये जो मैंने तुम्हें सेकंड वाला क्वेश्चन दिया, ये टीसीएस का है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन टीसीएस के जो एप्टीट्यूड एग्जाम होता है उसका है ये क्वेश्चन। दिस इज योर सेकंड स्टेज ऑफ योर इवैल्यूएशन। इन दिस सेकंड स्टेज आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों के ऊपर इवैल्यूएट किया जाता है। क्योंकि क्या है ना, किसी भी कंपनी में तुम अप्लाई करते हो, मैंने भी लिंक्डइन का एग्जांपल दिया, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अप्लाइंग। खास करके अगर हम कैंपस की बात करते हैं तो इन अ कैंपस देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अप्लाइंग अक्रॉस डिफरेंट कैंपसेस। दे कांट इंटरव्यू ईच एंड एवरीवन। अगर वो हर एक को इंटरव्यू करने बैठेंगे, 15-15 मिनट हर एक बच्चे के ऊपर इंटरव्यू पे लगाएंगे, which means अगर बाय चांस वहां पे 50 बच्चा भी बैठा है, that means 750 minutes at the bare minimum। 750 मिनट्स यानी कम से कम 13। वहां पे सम ऑफ n टर्म सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वैसा क्वेश्चन है जिसको उसकी मदद से सॉल्व किया जा सकता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म से। However, there is an easier way to solve this question। मैं तुम्हारा काम ही इजी कर देता हूं, मैं ऑप्शन दे देता हूं तुमको 4। कैन यू फिगर आउट इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा?
कैन एनी वन ऑफ यू फिगर आउट इस सीरीज को क्या करेंगे हम? इनफाइनाइट टर्म्स का सम है यहाँ पे, इस सीरीज का सम निकालना है आपको। यश मेरे भाई छोड़ दे तू भी, सब लोगों ने छोड़ दिया अब तो। कर लियो आराम से, मैम टाइम दे देंगी तुमको करने के लिए। हाँ जी, एनी सजेशन? I take this opportunity because I was given to understand that there is something that you want to know on A, quantitative aptitude, and B, your personality profile and interview support, जहाँ पे हम देखें कि इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो I take the interview the aptitude part first. One example, then we will do 2 short concepts on quantitative aptitude, and then we will come on to the personal interview part. Right? Let's take one example. ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है HCF and LCM of two numbers are 12 and 54 and one of the numbers is 18. You have to find out the other number. दो नंबर्स हैं, इनका HCF है 12, LCM है 54, एक नंबर 18 है। बताओ दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे? HCF and LCM of two numbers are 12 and 54. One of the numbers is 18. You have to find out the other number. Does anyone know इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है हमारा? That's a class 10 का कॉन्सेप्ट. If you recall. नहीं? चैट जीपीटी से नहीं आया आंसर? कितना आंसर? गलत। मतलब आई नो तुमने 36 निकाला, चैट जीपीटी इसका आंसर 36 ही देगा, क्योंकि चैट जीपीटी यूज करेगा फॉर्मूला HCF into LCM, किसी भी दो नंबर्स के बीच में उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, which is what they have done. अगर आप यही फॉर्मूला यूज करोगे you will get the answer of 36, which is okay. What ChatGPT does not really does is, वो सोचता नहीं है, वो फॉर्मूला लगाता है, वो सोचेगा नहीं। This is where you are evaluated. This is where aptitude tests are conducted to see कि तुम सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते। यहाँ पे एक प्राइमरी कंडीशन होती है हमारी, अगर तुम्हें HCF और LCM ध्यान हो। अच्छा, do you recall what was HCF? पीछे, बिल्कुल पीछे वाली मैडम। HCF और LCM क्या होता है? हाँ हाँ तेरे को बोलो बेटा। What is HCF and LCM? नहीं? उधर देख के कोई फायदा नहीं है, तुझसे पूछ रहा हूँ। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है? हाँ 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 इससे नहीं, पीछे टोपी। HCF LCM क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये तुम्हें याद है कि नहीं है, किसी भी नंबर्स के बीच में अगर तुम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मस्ट ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा। किन्हीं भी नंबर्स में HCF निकालो, LCM निकालो, HCF LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे 12, 54
को डिवाइड नहीं करता। तो हालांकि फॉर्मूला लगाने से हमारा आंसर आ जाएगा, टेक्निकली ये डेटा ही इनकंसिस्टेंट है। देयर कैन नॉट बी एनी आंसर, तो हम बोलेंगे द आंसर हियर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर निकल ही नहीं सकता है। दोबारा बता रहा हूं, ये बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं। जब किसी भी कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उनका एम तुम्हें सिलेक्ट करना नहीं है, उनका एम है तुम्हें रिजेक्ट करना। वो एप्टीट्यूड टेस्ट बनते हैं विद द व्यू पॉइंट कि हम जितने ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं पे ट्रैप कर सकें, जितना मैक्सिमम जनता को एलिमिनेट कर सकें, उतना एलिमिनेट करेंगे। और वहां पे कोई बड़ा टेक्निक हेवी, फॉर्मूला हेवी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वहां पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जिनमें छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन ट्रैप्स में ना फंसे। राइट जी, नेक्स्ट वन, अनदर क्वेश्चन ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। वर्ड प्रॉब्लम है, तो अब तुम्हें ये देखना है पहले तो कि एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। टेक अ मिनट, फिगर इट आउट एंड डोंट यूज योर फोन। पेपर में फोन नहीं मिलेगा, पेपर में खुद ही करना पड़ेगा। चैट जीपीटी नहीं करना है, ये वाला जीपीटी यूज करना है अपने को। तो लेट्स यूज इधर वाला जीपीटी, गॉड गिवन जीपीटी, एंड यूज करेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहे हैं एक रॉड को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली जो रॉड है उसके 18 पार्ट्स कर सकते हैं, हर एक पार्ट की इंटीग्रल लेंथ है। दूसरी के 32, तीसरी के 12, हर एक रिजल्टिंग पोर्शन का इंटीग्रल लेंथ है। तुम्हें रॉड की लेंथ बतानी है। You have to find the length of the rod. पहली चीज HCF यूज करेंगे, LCM यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? LCM। कैसे पता LCM? मिनिमम। ओके, चल ठीक है, मिनिमम मैं सोचा आपने, आई कम टू दैट। पर हाँ, इस क्वेश्चन में LCM है। निकालो आंसर, बताओ कितना आएगा। Find the LCM of these numbers. 12, 18 and 32 का LCM. Is there anyone जो एक क्वेश्चन विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं? This question basically says, एक रॉड है हमारी, इस रॉड के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये पार्ट 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट की लेंथ एक इंटीजर है। ये पार्ट 18 में और ये पार्ट 22, और हर एक छोटे पार्ट की इंटीजर लेंथ तुम्हें ओरिजिनल रॉड की लेंथ बता दिया। दैट्स ऑल। हाँ जी, एनी आंसर एनीवन? तुम कैलकुलेटर यूज कर लो, चैट जीपीटी ना यूज करना, या परप्लेक्सिटी या जेमिनी या जो भी यूज कर रहे हो। यूज योर कैलकुलेटर इफ यू वांट टू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ जी, एनी आंसर
अब जैसे बोला आपने, तुम्हारी रॉड ऐसे 3 पीसेस से बनी है, तुम्हारी रॉड ऐसे 3 पीसेस से बनी है, तो तुम्हारी ओरिजिनल रॉड की लेंथ विल कम आउट एज 864 यूनिट्स। Last one and then we'll see if we move on to concept or not. Read this question. अब मुझे पढ़ के बताओ कि HCF है या LCM? A rectangular cloth measuring 54 centimeter into 90 centimeter is cut into equal squares. Cloth base नहीं हो रहा. What is the minimum number of squares that can be made? HCF use करना है या LCM? How many for HCF? How many for LCM? अब यहाँ LCM नहीं यूज करना है, इस केस में हमें यूज करना है HCF। ये मिनिमम वर्ड पे नहीं जाना है हमको, हमें देखना है कि गिवन नंबर से छोटा नंबर निकालना है तो HCF, बड़ा नंबर निकालना है तो LCM। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर कपड़ा है मेरा, 90 by 54 का, इसको कट करके हमने छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस बनाए, तो जो स्क्वायर पीस की साइड है A, ये 90 से छोटी है, ये 54 से छोटी है, तो इसको इनका HCF होना पड़ेगा, which means जो मेरी साइड ऑफ स्क्वायर है वो HCF होगी, which is 18 सेंटीमीटर। However, this is not my question. मेरा क्वेश्चन कह रहा है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बना सकते हैं हम, तो कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं मेरे यहाँ पे? ये छोटे छोटे जो पीसेस बने हैं, दोनों के एरिया को डिवाइड कर दूंगा, बड़े कपड़े का एरिया, छोटे स्क्वायर का एरिया, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पीसेस कम आउट एज 15 पीसेस इन टोटल। तो ये मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड पे नहीं फोकस करेंगे हम फोकस करेंगे कि नटशेल में जो डेटा निकालना है हमको, वो किस तरीके का डेटा निकालना है। Right, ji? Done everyone? So to this extent, let me take two small concepts and then we'll come to the interview preparation. कि हमें इंटरव्यू में किस तरीके से प्रिपेयर करना है। चलो let's take one small concept, not even two, we'll take one small concept जो बड़ी फ्रीक्वेंटली हर एप्टीट्यूड एग्जाम में पूछा जाता है। This is called as LCM का मॉडल नंबर 1। यहाँ पे हमें डेटा दिया जाता है, एक नंबर is divided by different divisors to leave a common remainder। LCM का मॉडल नंबर 1 कहता है नंबर अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड होगा और सेम रिमाइंडर देगा। तो नंबर when divided by different divisors leaves the same remainder r। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है नंबर इज k into LCM, जो भी डिवाइसेस हैं, प्लस r। नेक्स्ट टेक एन एग्जांपल। ये k क्या बना है इसको मैं बताऊंगा आपको अभी, we'll come to this। क्वेश्चन कह रहे हैं मेरा find the smallest number which leaves the remainder of 2 when divided by 4, 5, 6। यही फॉर्म है हमारी, अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड हो रहा है और सेम रिमाइंडर दे रहा है। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा k into LCM of numbers plus 2। 4, 5, 6 का LCM comes out as 60। तो मेरा नंबर का फॉर्म आ गया 60 into k plus 2। और अब क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, तो फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर मैं k की वैल्यू 1 डालूंगा और मेरा नंबर बन जाएगा 62। तो k ऐसा वेरिएबल है जो इसी नंबर की फॉर्म को
स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर या किसी भी अलग अलग वैरायटी में मूव ऑन कर देता। Would you like to try the second one? Would you like to try the second question? इसी फॉर्म में है smallest 3 digit number which leaves a remainder of 2 when divided by 4, 5 and 6. अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बोला, सेम फॉर्मूला है, सेम अप्रोच है, पर अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पे जा रहा हूँ मैं, स्मॉलेस्ट नंबर की जगह। तो अब यहाँ पे ऑल आई नीड टू डू इज, फॉर्म तो यही रहेगी मेरी, बस अब k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, k ऐसा नंबर बना दूंगा कि मैं 3 डिजिट में पहुंच जाऊं। तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू 2 कर दूंगा। यहीं पे इसी फॉर्म में मैं बोलता फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो फॉर्म अभी भी वही है मेरी, जस्ट दैट अब मैं k को चेंज करूंगा ऐसे नंबर में कि वो इसी एक्सप्रेशन को 4 डिजिट में पहुंचाएगा। कैन यू गेस, कैन यू कैलकुलेट कि k की क्या वैल्यू रखूं मैं यहाँ पे कि मैं 1000 से जस्ट ऊपर पहुंच पाऊं। आई एक्सीड 1000 बाय वेरी स्मॉल मार्जिन। क्या वैल्यू रख सकता हूं मैं k की यहाँ पे? 60 इंटू k प्लस 2 करना है। 60 का कहां पे मल्टीपल 1000 को जस्ट इंक्रीज करता है। इफ यू नो द टेबल ऑफ 6 तो ये आंसर आ जाएगा बड़ी आराम से आपका। किस पे? 17। तो यहाँ पे k की वैल्यू अगर मैं 17 डालूंगा तो इस केस में मैं 1000 को जस्ट इंक्रीज करता हूं। सेम लैंग्वेज, सेम फॉर्मूला, 3 अलग अलग वेराइटीज बन जाती हैं, और नॉट जस्ट 3, मल्टीपल वेराइटीज बन सकती हैं। ऐसे में बोल सकता था कि बताओ कितने नंबर हैं जो 500 से 800 के बीच में आएंगे, कितने नंबर हैं जो 1000 से 2000 के बीच में आएंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, बस k की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी हमारी, अदरवाइज नथिंग एल्स इज गोइंग टू चेंज हियर। What you need to keep in mind is, in an interview, it is more of an interaction than a question and answer session. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम आंसर कर रहे हो, फिर वो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर वो अगला आंसर कर रहे हो, जैसे भी हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ तो आंसर आ रहा है, वरना हर कोई अपने काम में बिजी है। This is not how your interview should be. Your interview should be an interaction. तो में से किसी का कोई इंटरव्यू हुआ है अभी तक? कमिटी के लिए, किसी कॉलेज के लिए कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ है? क्या पूछा था इंटरव्यू में? हाँ जी बताओ क्या पूछा? What did they ask you? Will I handle my academics along with my social responsibility? Okay, और? What are the qualities of a leader? What is the qualities of? A leader. A leader. And how will I handle the pressure? Okay, बढ़िया। कौन सी सोसाइटी के लिए था? Expression society. Expression। आगे ने? कहाँ इंटरव्यू हुआ था? सर कॉलेज में हुआ था, समर इंटर्नशिप के लिए। समर इंटर्नशिप के लिए। समर इंटर्नशिप में क्या पूछा था तुमसे? सर मेरे इंटरेस्ट पूछा था, मेरे इंटरेस्ट पूछा था, और मेरे बारे में पूछा, फैमिली के बारे में पूछा था, पर्सनल। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? टेल मी योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। पीछे भी किसी ने हाथ खड़ा किया था? यू हैड ना? देखिए पीछे ने। राइट जी, क्या पूछा था इंटरव्यू में? Introduction and then my background, strengths and weaknesses, Strength and weaknesses और and like the area like which hold my interest. बढ़िया। तो these are some of the common questions, और अभी मैं एक एक करके common variety of questions पे आऊँगा आपके साथ कि common weight रखें।
कॉमन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे आऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है हमसे। बट वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू हैज टू बी एन इंटरेक्शन। उतना कैजुअल इंटरेक्शन नहीं जितना तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, ऑब्वियसली वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरव्यूअर के लिए कैजुअल हो सकता है, तुम्हारे लिए तो फॉर्मल सिचुएशन है वो, तो इट कांट बी एज कैजुअल एज दैट, बट इट कांट बी अ मेंटर, इट कांट बी अ स्ट्रिक्ट हायरार्कियल सिचुएशन। जितना तुम उससे कंफर्टेबल हो जाओगे, जितना तुम नॉर्मल कैजुअल एंड एथिकल स्टैंड फॉर इट। कितने लोग एनीमे देखते हैं? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच एनीमे? बस दो, दोनों में से किसके पास क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन है? क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन है या एनीमे देखने का? अच्छा, क्या हम कहाँ देखता है? वेब पे कहाँ पे? और बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? क्योंकि पायरेसी है ना। नाउ दिस वाज अ रॉन्ग आंसर। व्हाई? क्योंकि इन योर इंटरव्यू यू कैन नॉट से दैट यू आर कमिटिंग पायरेसी। पायरेसी इज बेसिकली पैसा चोरी करना ना। यू कांट से दैट। तुम करते हो, सब करता है, वो अलग बात है। सर आप क्रंची रोल कह रहे हो, सर क्रंची रोल में बहुत सारे अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल एनिमे की स्पेशली, जैसे सर पबजी के भी बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ एपिसोड है, क्योंकि उनके पास अपने राइट्स का क्रंची रोल के पास। तो सर एक्चुअली ये होता है कि मतलब अगर मेरे जैसे यूजर है जिनको देखना होता है और वो वैसे वॉच करने जाते हैं, तो उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सेस होता है, फिर वो सर्च करते हैं। तो सर लोग ये वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया मैंने एनिमॉल, ऐसी बहुत सारी एनिमे की वेबसाइट्स है, ये हेल्प करती है। Yes, sir. So what Animesh was saying was कि he is a binge watcher of anime, ठीक है? I am sure पीछे भाई भी binge watcher होगा, यहाँ पे सर भी binge watcher होंगे, ठीक है? मैंने भी बहुत देखे हैं। और अगर तुम मुझसे अभी इंटरेक्ट कर रहे हो, मैं बोलूँगा कि हाँ मैंने भी देखे हैं, मैंने भी YouTube पे भी देखा है, मैंने टेलीग्राम पे भी सर्च किया, मैंने यहाँ भी किया, वहाँ भी किया। लेकिन ये चीज मैं इंटरव्यू में नहीं बोल सकता, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू यू हैव टू मेंटेन अ मॉरल सिस्टम, यू हैव टू मेंटेन योर एथिकल कंपास। आप बिकॉज ऑफ एथिक्स नहीं कमिट कर सकते कि मैंने ऐसा कुछ काम किया है। कितने लोगों का बिजनेस है, अपना बिजनेस या फैमिली का बिजनेस? अपना बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है, बस इतनी जनता है। तो ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन नहीं है? फैमिली बिजनेस गिनती के 6 लोगों का है, यहाँ पे इंटर्नशिप की नहीं है किसी ने, एक्स्ट्रा करिकुलर है नहीं, करना क्या चाहते हो फिर तुम लोग? कि जॉब का सोचा नहीं है, एजुकेशन का आगे सोचा नहीं है, फिर करने का क्या प्लान है? पीछे वाली जनता क्या प्लान है? नहीं पीछे, बहुत दूर है, पीछे पीछे मैं तो पूछ रहा हूँ, बोल क्या सोचा है ग्रेजुएशन के बाद करने का? आवाज नहीं, देखेंगे होगा वही जो राम ने चिरा था। ओके, हाँ जी, अच्छा बिजनेस का है, क्या बिजनेस है? अपना है या फ्रेंड्स का है, पेरेंट्स का है? कितना कच्चा बिल बनाते हो साल में? कितना बनता है? अब अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। हाँ, ये गलत आंसर है। तुम्हें बोलना है हम कच्चा बिल बनाते हैं, तो आपको अपना जीएसटी वाला बिल बनाते हैं। मॉरल कंपास इन योर इंटरव्यू, एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली। बहुत छोटे-छोटे से लूप होल्स हैं, पर इन छोटे-छोटे से लूप होल्स की वजह से हमारा काम इंटरव्यू में गड़बड़ हो जाता है। हमें कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं करने कि हमने इमोरल काम किया है, हमने इलीगल काम किया है। यू राइट, तो तुम्हें इंटरव्यू में कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं करने की गलत काम है, नहीं,
हम पक्का बिल बनाते हैं नहीं। हमने जो भी मूवी देखी है, बुक पढ़ी है, गाने सुने हैं, सब हमने प्रॉपर सब्सक्रिप्शन के ही थ्रू करे हैं। चाहे गाना तुम वो MP3 जट से डाउनलोड करो या hungama.com से डाउनलोड करो, पर तुमने लिया जियो का सब्सक्रिप्शन है, सावन का सब्सक्रिप्शन है, जो भी है हमारे, you are not doing anything illegal. These are some of the areas which are evaluated during your interview. How do you want to prepare? How should you prepare? अभी MBA में सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, मैंने सुना। How many of you are second semester students in MBA? MBA नहीं, BBA नहीं, MBA second semester. MBA के कितने स्टूडेंट्स हैं in general? How many of you are MBA students here? There are 2 of you are MBA students. BBA second year students. Second year. BBA second year या 4th semester students. तो अब तुम लोगों का फाइनल प्लेसमेंट का सिचुएशन आने वाला है, कमिंग ईयर में फाइनल प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ना एक गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम बिल्कुल एंड के लिए रख देते हैं। वो कॉमन HR क्वेश्चंस जो हैं हमारे, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं हमारे, वो बिल्कुल एंड के लिए रख देते हैं। व्हाट वी शुड फोकस ऑन इस पहले प्रिपेयर करके रखो। तुम्हारे रेज्यूमे में जो तुमने डेटा डाला है, जो भी इंफॉर्मेशन डाली है, तुम अपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में जो भी बोलने वाले हो, प्रिपेयर फॉर क्वेश्चंस, रिसर्च ऑन दोस क्वेश्चंस इन दीज 6 मेजर एरियाज। एकेडमिक्स, जो भी तुम्हारी ग्रेजुएशन है, जैसे BBA और MBA वाले, सबसे तुम्हारे सबके करिकुलम में है ये चीज। अगर मैं तुम्हें बोलूं मास्लोज हायरार्की बताओ, कितने लोगों को पता है मास्लोज हायरार्की क्या है? मास्लोज हायरार्की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किया होगा सबने। वन ऑफ यू नो इट, बताओ। पिरामिड। Which begin from the basic physiological needs, that is food, clothes and shelter. Then it goes to safety, security needs, that is protection from outer sources. Self-actualization need. Maslow's hierarchy. What is law of diminishing returns? Who can tell me what is law of diminishing returns? What are FIFO and LIFO? FIFO, LIFO, FIFO and LIFO. What is ABC method of inventory accounting? What are giffen goods? हाँ, पढ़ा सब कुछ है तुमने। मैंने MBA किया है, मैंने पढ़ा है, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने तो वहाँ नहीं पढ़ा था, तो मैंने तो जो पढ़ा है अपने MBA के दौरान पढ़ा है। तो जो भी तुम्हारा एकेडमिक्स है, तुम्हारी मार्कशीट पे लिखा है, तुम्हें पसंद है या नहीं है वो बात की बात है। तुमने किया है, ऑन पेपर किया है, उसके पेपर दिए हैं, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दैट पार्ट। इंटर्नशिप किसी ने सिग्निफिकेंटली की नहीं है यहाँ पे सच, तो उसके बारे में नहीं कर सकते हम बात। हॉबीज के बारे में बात कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ म्यूजिक काइंड ऑफ अ हॉबी? गिटार, सितार, वायलिन, कुछ भी ऐसा है? एनी म्यूजिक काइंड ऑफ हॉबी? एनीवन? आर्ट एंड स्केचिंग? स्केचिंग करते हैं, कैसे स्केचिंग करती है? मंडाला कैसे मेंटेन करके रखती है रिकॉर्ड्स? फाइल है या इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे। नाउ ये 2 एरियाज एज अ इंटरव्यूअर मेरे सबसे इजी है इवैल्यूएट करने, क्योंकि इसका रिटन प्रूफ होगा सामने। अगर तुमने स्केचिंग की है तो स्केचिंग का कोई ना कोई प्रूफ होगा, चाहे इंस्टाग्राम पे होगा या तुम्हारे पास फोल्डर होगा। अगर तुमने म्यूजिक टाइप कुछ बोला, आई विल गिव एन एग्जांपल। I take MBA interview, students who are preparing for MBA entrance exams. तो I recall this incident. I am कोलकाता का इंटरव्यू था, इंडिया हैबिटेट सेंटर पे I am कोलकाता का इंटरव्यू हो रहा था। वहाँ पे कैंडिडेट ने बोला कि I like to play गिटार। इंटरव्यूअर ने वहाँ पे उसको गिटार अरेंज करके दिया है।
उससे गिटार बजवाया गया है, लिटरली वहां पे इंटरव्यू रूम में गिटार बजवाया गया है। सिंगिंग के लिए बोल सकते हैं, अगर आपकी सिंगिंग एज अ हॉबी है तो सिंगिंग के लिए बोल सकते हैं। स्केचिंग अगर हॉबी है, मैं स्केचिंग भी वेरीफाई करवा सकता हूँ। देखो, मैं अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा ना तो मेरी स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर तुम्हारी स्केचिंग हॉबी है और मैं तुम्हें पेंसिल दूं, तुम बैठे बैठे कुछ तो स्केच कर सकते हो ना यहाँ पे। तो those things are very easy for me to evaluate and much more than academics. हॉबी तो तुम अपने शौक से करते हो ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछेंगे फिर, और अगर तुम इन डेप्थ आंसर नहीं कर पा रहे तो फिर गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन listen to me here. I want you to list down whatever hobby you have. Take out your phone if you want to. Just write down जो भी तुम्हारी हॉबी है. There's a one very small exercise that we'll do. Take out your phone, क्योंकि कॉपीज तो है नहीं मेजॉरिटी जनता के पास, तो फोन निकालो, फोन पे अपनी हॉबी लिखो. Write down whatever hobby you have. जो भी हॉबी आपके दिमाग में आ रही है, whatever you would like to call as your hobby. अगर मैं इंटरव्यू में पूछूंगा बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है, तब जो भी हॉबी बोलोगे just write down those hobbies. Anyone still writing down the hobbies? लिख लिया? कितने लोगों ने 3 या 3 से ज्यादा हॉबीज लिखी हैं? Raise your hand. कितने लोगों ने 3 या 3 से ज्यादा हॉबीज लिखी हैं? चलो that's good अगर नहीं लिखी है, क्योंकि हॉबीज ना 3 या 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। वो तुम्हारे इंटरेस्ट एरिया हो सकते हैं, दे कांट बी योर हॉबी, क्योंकि एक हॉबी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप, और द काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग दैट दे वुड आस्क यू. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू प्ले एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स? तूने बोला था बास्केटबॉल, क्रिकेट, और कोई स्पोर्ट्स? एनीवन? बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, पीछे किसने हाथ खड़ा किया? बैडमिंटन. एनीवन एल्स? चलिए 3 स्पोर्ट्स. बास्केटबॉल का जो हुप है किस हाइट पे होता है? सरकमफ्रेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं बोल रहा, हुप का सरकमफ्रेंस. हाँ, बॉल का डायमीटर. बेसिक नंबर्स हैं. इट्स ओके, डोंट नो, दैट्स ओके. आई जस्ट वांट टू गिव एन आइडिया. क्रिकेट, राइट? क्रिकेट में स्टंप्स, जो विकेट है उसकी हाइट, स्टंप्स की लेंथ, पिच की लेंथ. चिन्ना स्वामी स्टेडियम कितना बड़ा है? आई नो ये नहीं पता होगा तुमको, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं ना इस बारे में. बट दैट्स द प्रॉब्लम विद मेंशनिंग समथिंग एज योर हॉबी. अगर आप किसी चीज को हॉबी बोल रहे हो तो वहां पे इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है. आई गिव यू माय एग्जांपल. माय फर्स्ट इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यू, हैपेंड विद इंफोसिस. आई एम ए डीटीयू का ग्रेजुएट. मेरे टाइम पे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था. तो फर्स्ट इंटरव्यू हैपेंड विद इंफोसिस. आई लाइक टू रीड अ लॉट. तो माय फर्स्ट इंटरव्यू, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी व्हाट्स योर हॉबी. मैंने ऑब्वियसली बोला रीडिंग फिक्शन एंड फैंटेसी फिक्शन. उसने बोला चलो बताओ कौन कौन से ऑथर्स पढ़े हैं. बताए मैंने, जेफरी आर्चर, सिडनी शेल्डन, जॉन ग्रिशम, टोल्कीन, पुलमैन, जेके राउलिंग, ये सब बताए. उसने कहा चलो बताओ जेफरी आर्चर की कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं. फिर जेफरी आर्चर की बुक्स बताई कौन कौन सी पढ़ी हैं. उसने कहा चलो इस बुक की स्टोरी डिस्कस करते हैं. आई स्टिल रिमेंबर द नेम, एज द क्रो फ्लाइज. तो हमने उसकी पूरी स्टोरी लाइन डिस्कस करी, क्या कैरेक्टर पसंद आया, क्या कैरेक्टर पसंद नहीं आया. फुल 5 मिनट्स तक इस चीज पे इंटरव्यू हुआ है हमारा. द गुड थिंग अबाउट हॉबी बेस्ड क्वेश्चन इज
अगर मैंने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया तो मेरे को ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, अगर मैंने नहीं क्लियर किया तो नेगेटिव भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने अपने इंटरेस्ट एरिया में परफॉर्म नहीं किया। इवन बेटर थिंग इज, अगर तुमने हॉबी का क्वेश्चन क्लियर कर लिया, बाकी इंटरव्यू में कहीं पे स्क्रू अप हुआ है तुम्हारा, वो माफ हो जाता है एक बारी को, कि एटलीस्ट तुमने अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को तो अच्छी तरह से प्रूव कर दिया ना। एकेडमिक्स तुमने चलो ऊपर नीचे किया चलेगा, जनरल नॉलेज फ्रैंकली किसी को कुछ नहीं है, पर हॉबी तो तुम्हारा फेवरेट एरिया है ना, वहां तो अपना खंबा गाड़ सकते हैं, वहां पे भी नहीं कर पाए तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेयर यू आर इवैल्यूएटेड। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हमारी हॉबी जो है, हॉबी में कम से कम 5 मिनट की क्रॉस क्वेश्चनिंग इज द वे टू जज यू। इंटरेस्ट एरिया, इंटरेस्ट एरिया इज कुकिंग है, कभी 2 महीने में एक बार खाना बना लेते हैं, तो उसको हॉबी नहीं बोलेंगे, उसको फिर इंटरेस्ट एरिया बोलेंगे कि हमें पसंद है पर हम डेडिकेटेडली नहीं करते। तो अगर इंटरेस्ट एरिया है मीडियम लेवल ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग, टाइम पास जो कि हम पैसिवली करते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, गाना सुनना कैन नॉट बी योर हॉबी, गाना क्रिएट करना कैन बी योर हॉबी। तो पैसिव कुछ काम करें, जैसे घंटे घंटे दिन में सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो दैट इज अ पैसिव एक्टिविटी दैट कैन नॉट बी योर हॉबी। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू क्लासिफाई एज अ टाइम पास, कि सिर्फ टाइम वेस्ट करें, मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारी ज्यादा वहां। Two very good resources in case you want to get idea of what questions are asked. 3 है आप तो actually reddit.com, go to reddit का वेबसाइट, reddit का ऐप, go to Quora, go to pagalguy.com। ये 3 रिसोर्सेज है। पागल गाय predominantly MBA इंटरव्यूज के लिए है। In case any one of you plans for MBA interviews later on, तो पागल गाय पे MBA के इंटरव्यूज की बहुत बड़ी कलेक्शन है, लोगों ने अपने इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स डाल रखे हैं। कोरा पे, रेडिट पे लोग जॉब के और MBA के सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस डालते हैं। तो मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दिया इंडिया हैबिटेट सेंटर का, लुक फॉर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दिस ईयर। वन स्टूडेंट टोल्ड मी इस साल उससे इंटरव्यू में गाना गवाया गया है, क्योंकि उसने बोला सिंगिंग इज माय हॉबी। तो इंटरव्यू लिटरली आस्क्ड हर टू सिंग अ सॉन्ग ड्यूरिंग दिस, क्या कहते हैं, सरस्वती वंदना करवाई गई थी उससे, बिकॉज उसने बोला कि शी हैज डन दैट इन द पास्ट, तो करवाया गया उसको। एंड द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गिव 5-6 पॉइंटर्स कि यार इंटरव्यू मुझसे इन 4-5 एरिया में पूछते हैं। इंटरव्यूअर इज गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी कि बेटा अपने बारे में मुझे चीजें बताओ, 4-5 एरिया बता दो जहां पे तुमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड इफ यू डू नॉट वर्क ऑन दिस क्वेश्चन, यू आर लूजिंग आउट ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी। तुम्हारे प्रोफाइल में जो भी खास चीज है उसको अपने इंटरव्यू के स्टेटमेंट में बता दो। तुम्हारा एम होना चाहिए यहाँ पे अबाउट 40 to 45 सेकेंड्स बोलने का, 40 to 45 सेकेंड्स बोलोगे और 6 to 7 एरियाज दोगे उनको जहां पे वो तुमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 से 7 एरिया मिल गए, बाकी फिर इंटरव्यू उसकी उसी लाइन पे चलता रहेगा। पर अगर तुमने अपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में इतना भी नहीं दिया तो फिर दिक्कत है, राइट? डज एनीवन हैव दैट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा अपना टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जस्ट फॉर एवरीबॉडी टू गेट एन आइडिया? बोल दे, कुछ भी बोल दे, दैट्स ओके। First of all, my name is Pratham Agarwal. I participate in lots of events of college and external college events. Second, I have a keen interest in marketing area. And I belong to business area.
my hobby is to play cricket. बढ़िया। In your group discussion, you will be evaluated on क्या data है तुम्हारे पास, what are the points that you are making to the interview, how well you are able to stay or listen to others. क्योंकि group discussion या generally any interaction is not just about speaking something, but it is equal parts about listening to them as well. ग्रुप में किस तरीके से बिहेव करते हो, शक्ल फिर पॉजिटिव या नेगेटिव तुम्हारे दिखता है, आर यू एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस और नॉट. और अगर ग्रुप अनरूली हो रहा है, ग्रुप फिश मार्केट की तरफ जा रहा है, आर यू एबल टू ब्रिंग एवरीबॉडी टू अ कॉमन ग्राउंड. अगर ग्रुप पॉइंट से डिविएट हो रहा है, जो मेन डिस्कशन पॉइंट है उसे डिविएट हो रहा है, आर यू एबल टू ब्रिंग एवरीवन टू द सेम प्लेटफॉर्म और नॉट. These are some of your idea generation techniques, something called as SPEL, socio, political, economic, legal and technological viewpoint. अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो फोकस ऑन द फ्रेमवर्क, उस टॉपिक का सोशल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, लीगल इम्पैक्ट क्या है, सो ऑन. नेक्स्ट, viewpoint of affected parties. इस पर्टिकुलर टॉपिक से लोग कैसे इम्पैक्ट होते हैं, सेलर कैसे इम्पैक्ट होगा, कंज्यूमर कैसे इम्पैक्ट होगा, बायर कैसे इम्पैक्ट होगा. एंड कीवर्ड अप्रोच, कोई कीवर्ड अगर तुम्हें केस स्टडी में दिख रहा है तो उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे. इफ नथिंग एल्स वर्क, अगर आपके पास इनमें से कोई भी अप्रोच काम नहीं करती है, then we'll come to the approach SUAL, called as shut up and listen. अगर तुम्हें नहीं पता तो 2 मिनट के लिए शांत रहो, जिनको पता है उनको बोलने दो, उससे आइडिया निकालो और फिर कुछ कंट्रीब्यूट करो. बट ग्रुप डिस्कशन में कंट्रीब्यूशन वही माना जाएगा जो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें डेटा होगा. Yes, I agree with my fellow student, is not considered as a contribution. Right. So I'll skip over this part for now. Last couple of slides for me. जब आप एवरीडे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, this deals with both aptitude and personal interview preparation. Don't be afraid to make a mistake. गलत हो सकता है काम, गलत होगा काम बहुत बारी, बट अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हम सही भी नहीं कर पाएंगे. एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करेंगे. You will follow a structure है, theory plus solved and then unsolved questions. In case you have a doubt, find a mentor who can clear up those doubts for you. Make notes, prioritize important topics. Unlike school के कॉलेज के एग्जाम, पेपर से 2 दिन पहले करके नहीं चलता किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में. You have to be very thorough. You have to be very regular with your preparation, and ultimately एक schedule बनाना है, regular schedule पे काम करना है आपको. How you can improve every day. 5 key pointers from my end. अगर तुम्हारा ट्रैवल टाइम है तो तुम अपने ट्रैवल टाइम में इंप्रूव कर सकते हो. कॉलेज है, सब कुछ है, कई बार नहीं बनता हमारे पास, तो यूटिलाइज योर फ्री टाइम पीरियड. मेक शॉर्ट रिव्यू सेशंस एंड 1 टॉपिक पर वीक.
Very good, done. Thank you very much. In case any one of you wants to connect with me, in case any one of you wants to connect with me, this is my LinkedIn profile. You can connect with me via LinkedIn. Right. In case any one of you has any query, I will be more than happy to take that query from you. Right. Thank you, everyone.